أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف دیکھیے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ وَلَقَدِ اخترا یختری لفظ ہے، خارا یا اس کا روٹ ہے اور باب افتعال میں چلا گیا۔ خا را اور یا جو ہے اس کا روٹ ہے، مادہ ہے، اس کا مطلب ہے چن لینا، پسند کر لینا، یہ اس کے معنی آ رہے ہوتے ہیں خا را یا سے۔ جب یہ باب افتعال میں چلا گیا تو دیکھا دیکھی میں ایسا ہوتا ہے، اس میں اثر قبول کرتا ہے، یہ باب کی خاصیت ہے۔ امجد صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ باب افتعال جب آئے گا تو اس کی خاصیت شامل ہو جائے گی۔ وا اور لام البتہ قد اخترا یختری ہوتا ہے، ماضی ہے، یہ ماضی کے ساتھ قد آئے گا تو ماضی قریب بنا دے گا، ہم پسند کر چکے۔ وا اور لام البتہ قد تحقیق ہم پسند کر چکے، ہاں جی۔ اخترناہم نا ہم ان کو، جب فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہوگی تو مفعول بے کا ترجمہ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ نون الف نا کی ضمیر ہے، اس نون الف نا کی ضمیر کی بدولت کوئی فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ضمیر علیحدہ جڑ کر آنے والی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ نون الف نا آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا امر کا بھی شائبہ ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے نا، پیچھے الف نہیں وہ امر والا معاملہ ثلاثی مجرد کے بابوں میں ہوتا ہے جس کا الف جو ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو باب ہوتے ہیں افتعالا، انفعالا، استفعالا، ان کا حمزہ بھی فکس نہیں ہوتا، ان کا حمزہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ چونکہ ڈراپ ہوا ہے، جو پیچھے لفظ کے ساتھ پڑھا نہیں جا رہا تھا، ڈراپ ہو گیا، یہ امر نہیں ہے، امر کے ساتھ اس کا کوئی شبہ نہیں ہے، امر بالکل علیحدہ چیز ہے۔ امر میں آپ دیکھیے جب آپ ثلاثی مجرد کا امر بناتے ہیں تو وہاں آپ ایک الف جو ہے لگانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں عبادت کر، تو آپ کہیں گے تعبدو، تو عبادت کر، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو۔ جب آپ کہتے ہیں عبادت کر تو تا اس کی ہٹائیں گے، الف لگائیں گے، با کے اوپر پیش لگائیں گے، تو اگر پیچھے کوئی حرف آپ مل گیا تو وہ حمزہ جو ڈراپ ہو جائے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو وہاں جو ہے حمزہ وہ ڈراپ ہوگا، سین کے اوپر پیش نے عین کے اوپر عین کے جزم ملا دی تو دونا نون رابی اس کا گرا، تو وہ امر بنا ثلاثی مجرد میں۔ یہاں اس کے ساتھ یہ ثلاثی مزید فی کے اس باب سے اس کا دور کا بھی شائبہ نہیں، امر کا شائبہ نہیں ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ گر جانے والا ہے، حمزہ غیر قطعی ہے، قطعی حمزہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم نے چن لی، ہم نے اور البتہ تحقیق ہم پسند کر چکے۔ لفظی ترجمے میں آپ آئیں گے تو بس یہ ان کو علی علم، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، ان کے علم کی بنیاد پر نہیں، جو بھی چن رہا ہوتا ہے، پسند کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے علم کی بدولت کسی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے۔ علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی ہے، ان کی بات۔ یہ بات قرآن مجید نے آغاز میں بھی کہہ دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ آج ہم امت مسلمہ بیٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس قوم کو، اس امت کو بڑی فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ ان کی لڑائی میں تمام انبیاء کرام آئے، پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان کی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ نے ان کو نیست و نابود نہیں کیا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت ہود کی قوم، ان سب کو نیست و نابود کیا۔
इनके शिरक के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको जिंदा रखा, ताहाल जिंदा रखा, तादा में क़यामत जिंदा रखेगा। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिर उनके साथ जो कुछ होगा होगा। फितरत अखमास तो कर लेती है लेकिन करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। उनका जो मिल्लत का गुनाह है वो इस दुनिया में निपटेगा। उनको ज़िंदा रखा, क्यों ज़िंदा रखा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, हज़रत इसहाक़ की औलाद में से पैदा हुए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है उनके आगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे जिसकी बुनियाद पर नस्ल को आगे चलाया अल्लाह ने। शिरक करने वाली सारी कौमों को अल्लाह ने नेस्तनाबूद कर दिया, नाफरमान कौमों को। इसलिए फजीलत दी। फिर जब फजीलत की बात आई तो उनमें देखिए हज़रत तालूत, उनमें देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सल्तनतें। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं में आए। तो कितनी फजीलत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आप देखिए, हवाओं पर भी, जिन्नात पर भी, परिंदों पर, हर चीज़। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तो ये पहाड़ भी नगमा गाया करते थे, तराना गाते थे, कुरान पढ़ते थे उनका। तो क्या अल्लाह ने उनको फजीलत दी है। इस एतबार से देखिए अला इल्मिन अलल आलमीन, तमाम जहानों पर हमने उनको पसंद कर लिया। ये जो पसंद किया ना उनको, उनकी ये गलत फहमी हो गई है, इसलिए वो आज हमारे ऊपर गालिब है कि हमें तो पसंद किया है। हाँ जी, जो हम यहूदी हैं ये दूसरे लोगों की मानिद नहीं है, अहिब्बाहुम हैं हम ज़्यादा पसंदीदा हैं। इसीलिए वो कहते हैं वो कालू कूनू हुदन औ नसारा था तदू, हाँ जी, हो जाओ यहूदी और ईसाई तो हदायत याफ्ता हो जाएगा। बड़ी बातें उनकी थी। वकालू कूनू वकालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम, ये जितने भी ख्यालात उनके हैं अल्लाह ने इन सब ख्यालों को का तोड़ वत्तकू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, सारी बातों में दे दिया था। बहरहाल आगे देखिए, वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन, वआतैनाहुम, और हमने दी उनको मिनल आयाति, निशानियों में से, मा फ़ीहि, जो उसमें थी, खुल्लम खुली आजमाइश। अब ये जो खुल्लम खुली आजमाइश की बात पर, बलाउन का मतलब था आजमाइश होना। बलाउन दूसरी तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा गया है, बलाउन इस तरह भी लिखा गया है। वो बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम पहले पारे में हमने देखा अलिफ से लिखा हुआ था और उसके साथ हमजा था। ये बलाऊ जो है ये जमा है, अगर वाव ना लगी होती तो वाहिद होता है, ये वाव लगी हुई है तो जमा है, बलाउम मुबीनुन। और ये मुरकब तौसीफ़ी बना हुआ है, कुल्लुम कुल्ली आजमाइश। ये कुल्लुम कुल्ली आजमाइश के वजह से बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने 9 निशानियाँ दी थी। 6 निशानियाँ तो उनकी थी बहुत समझ आने वाली, बाकी 3 निशानियाँ समझ नहीं आ रही थी। हाँ जी, मेंढकों की बारिश हो जाना, चिचड़ियाँ आ जाना, पानी खून बन जाना, ये जो अजाब थे ना, ये भी अल्लाह ने कहा उनकी निशानियाँ थी। ये थी उनकी आजमाइश। वैसे आजमाइश तो पहले भी थी, फिरौन से निजात पहली, यदे बैजा पहली बार, असा दूसरी बार, दूसरी निशानी, तीसरी फिरौन से निजात, चौथा बादलों का साया, 5वां मन्नो सलवा और 6ठा 12 चश्मे। 6 ये हुई, 3 ये निशानियाँ हो गई, 9 निशानियों के साथ उनको भेजा गया। तो देखिए खुल्लम खुल्ला आजमाइश के साथ, इन्ना हाउलाई, इन्ना बेशक यही, हाउलाई, हाजा की जमा हाउलाई, यही लयकूलूना, अलबत्ता वो सब कहते थे, अलबत्ता वो ये बात कहते थे। देखिए इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाल्ला, ला के ना, अगर आप इसका जुमला इसमें देखें, हाउलाई यकूलूना, यकूलूना फेल है, मुदारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और ये बतौर खबर बनी हुई है, हाउलाई बतौर मुब्तदा है। लेकिन जब इन्ना साथ लगेगा तो कहेंगे ये इन्ना का इसम बन गया, और इधर खबर जो बनी है हम कहते हैं फेल बतौर खबर बना हुआ है, उसको भी ताकीद के साथ लाम के साथ लेके आया। 2 ताकीदें आ गई, एक इन्ना की ताकीद आ गई और एक लाम खबर वाली ताकीद आ गई। इन्ना, इन्ना बेशक, हाउलाई यही, लयकूलूना, अलबत्ता वो ये कहते थे, क्या कहते थे, इन हिया इल्ला मौततुना नल ऊला
वमा नहनु बिमुनशरीन, ये था उनका कहना कि हम कहाँ उठाए जाएंगे, यही मौत पहली मौत है, यही मौत दूसरी मौत है। आज भी ये नजरिया हमारे लोगों में मौजूद है। ये जो तकलीफें आ रही होती हैं, ये कहते हैं मौत आ गई है, तकलीफ आई है, जो खुशहाली आई है वो हम कहते हैं कि ज़िंदगी मिल गई है। तो वो भी यही कहते हैं। उनके यहाँ भी तौरात आज आप उठा के देख लें, उसमें शैतान का जिक्र नहीं है, ना आखिरत का जिक्र है। वो कहते हैं इस दुनिया में जितनी नेकियां सारी जन्नत है, अपने किए का बदला आप जन्नत लोगे, आप बदी का बदला आपको इधर ही मिलेगा। तो ये देखिए उनका तस्वर यहाँ बयान किया जाए। इन हिया, अगर आयत में इन आ जाए और आगे इल्ला हो तो नाफिया होता है, इन नाफिया होता है। इन हिया इल्ला मौतातुना, मौतातुना हमारी मौत, मौतातुना ये इसम मुरक्कब इजाफी बना हुआ है, नून अलिफ ना की ज़मीर बता रही है, पीछे मौतुन था लफ्ज़, मौतुन मौतन मौतिन, ये मौतातुना जो है ये उसको एक ता जायद लगी हुई है, मौतुन को हमने कुरान मजीद ने मौतातुना कह दिया। इसमें ज़रा शफकत पाई जाती है, हमारी मौत, और कोई वजह नहीं है ता के आने की। ये ता हम उसको वकाया कह सकते हैं, या पढ़ने के लिए सीक्वेंस कह सकते हैं, इसकी पढ़ाई का उसलूब कह सकते हैं। हम ये कहते हैं नहीं वो मगर, नहीं ये मगर हमारी मौत ऊला, पहली मौत, हमारी ये पहली मौत है, हम जो मरे हैं हमारी पहली मौत है। वमा नहनु बिमुनशरीन, बस ये पहली मौत। कुरान मजीद ने दो मौतें और दो जिंदगियों की बात की थी। कहाँ कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि, दो मौतें दो जिंदगियाँ। याद रखिए जब भी जिंदगी आती है इसका मतलब मौत उसके पहले होती है। इंसान पहले मरा हुआ था, अल्लाह ने उसको जिंदा किया, एक जिंदगी वो मिली, फिर मार दिया, अब दूसरी मरतबा हम जिंदा हुए हैं, दूसरी मरतबा हम मरेंगे, फिर हमें नहीं मौत नहीं आएगी। यानी वो ये जो हम पैदा हुए हैं दूसरी बार पैदा हुए हैं। पहले अल्लाह ने हमारी अरवाह को पैदा किया था, एक ज़िंदगी वो थी, एक ज़िंदगी अब है, दो जिंदगियां दो मौतें। वो एक ही ज़िंदगी एक ही मौत मानते हैं, कहते बस यही कुछ है जो कुरान ने कहा, वो छोड़ें इस बात को। अब हम मरेंगे, मर के जी उठे हैं, अब नहीं हमने मरना ना हमने जीना, ये उनका तस्वर था एक जो यहाँ बात कही जा रही है। ऊला पहली, वमा नहनु बिमुनशरीन, और नहीं हम उठाए जाएंगे। मुनशर का मतलब है फैलाना, उठाना, जिंदा किए जाना। हम ये पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये नुशूर लफ्ज़ जो है वो यहाँ से ही आया हुआ है, नून शारा इसका रूट है, नशर फैलाना। फ़अतू बि आबाइना इन कुंतुम स्वादिकीन, अतायातु से फातू बन के है, अमर बना हुआ है, पस ले आओ। देखिए फातू बि आबाइना, कुरान मजीद का उसलूब है, अतायाती वो आया, बात को अच्छी तरह समझिएगा, अतायाती वो आया, फिर लाजिम है, उसको मुतद्दी बनाने के लिए बी लेके आया। एक बात तो ये थी। दूसरा ये अमर बना, फ़अतू बी लाओ, आओ नहीं लाओ, हाँ जी, बस लाओ अपने आबाओ अजदाद को। अगर तुम कहते हो कि वो मर गए और दोबारा नहीं उठना, हाँ जी, तो ये ज़िंदगी है, तो फिर जो मरे हैं उनको लेके आओ, क्यों वो मरे हैं, ये कुरान ने उसकी दलील दी है। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे पर सच्चे हो तो फिर उनको ला के दिखाओ। अहुम खैरुन, क्या वो बेहतर हैं। अब इंटरोगेटिव है, हम ज़मीर लगी हुई है, जब किसी इसम के शुरू में ज़मीर आती है तो वो बतौर मुब्तदा आती है। हम खैरुन अम कौम तुब्बा, यानी क्या वो बेहतर हैं या कौम तुब्बा बेहतर है, बताओ। अब दोनों के बारे में क्या बताएं। कौम तुब्बा के बारे में तो ये बता सकते हैं कि वो हलाक हुई है, उनके ऊपर अजाब आया, ये तो बड़ी बुरी बात थी, वो तो खंडरात बने हुए हैं, वो तो जाकर देख रहे होते हैं, है जी। तो कुरान ने इस तरह से उनकी निशानदेही की है, क्या वो बेहतर हैं या कौम तुब्बा। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले गुजर चुके, कौन बेहतर है, तुम्हें किस बात का इल्म है। तुब्बा कौम ये एक बस्ती का नाम है जहाँ तुब्बई कहा जाता है।
अहलकनाहुम, हमने हलाक किया उनको, इन्नहुम कानू मुजरिमीन, इन्ना बेशक हम वो कानू मुजरिमीन। ये कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हम आपको बता रहे हैं कि मुजरिमुन, मुजरिमन, मुजरिमिन, मुजरिमानी, मुजरिमैनी, मुजरिमैनी, मुजरिमूना, मुजरिमीना, मुजरिमीना, ये मफूली और इजाफी हालत एक जैसी है। कानू की खबर बनी हुई है, उधर ये इन्ना की खबर बनी हुई है। इन्ना अपने साथ वाले इसम को हमेशा मफूली हालत में लेके जाता है और ये जुड़कर आने वाली ज़मीर ये मफूली हालत में है। इन्नहुम कानू मुजरिमीन, बेशक वो थे गुनाहगार कौम। इतना ही सबक रखिए, बाकी इंशाअल्लाह कल अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक आसमाए। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरान अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना लैलि व अतराफ़न नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद। ऐसा भी है, हमें तो बात पहुँचे